In this video, we are gonna solve the secondary examination paper of Rajasthan Board for the class 10th of 2024. In this part, we will only solve the MCQs and filler portion of this paper. So let's start. These are the instructions, basic instructions. Now, this is section A. The first MCQ for us is that Fe plus H2O will gives us Fe3O4 plus H2. Coefficient of Fe in balance equation of the following above reaction will be. हमें बोला गया है उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा. So first we have to balance this equation. So for this we have Fe plus H2O will gives us Fe3O4 plus H2. Now we have to balance this equation. For this we can do one thing. See, uh, if I write just over here 4, oxygen are balanced. 4 atoms of oxygen on this side and 4 are over here. So oxygen is balanced. Hydrogen is 8, so we multiply by 4. It is also balanced. Now iron over here is 3, so we will just multiply the Fe over here by 3. It means the coefficient of Fe in the balance equation will be 3. So the option number C is correct. Now moving on to the next part. An acid present in curd. It's very simple question. The acid present in curd is lactic acid. Do you know it very well? Lactic acid is present in curd. Question number 3. The best conductor of heat. No, we know that silver, that is Ag, is the best conductor of heat. After silver, copper is the best conductor of heat. So in this 4 option, there is no silver, only copper is there. So the correct answer will be copper. If by chance at place of zinc there was silver, then we have to take silver. Okay. Now next question. फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन. कीटोन में उपस्थित प्रकार्यक समूह कौन सा होता है? सो वी नो दैट दिस इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. OH is the functional group of alcohol. CHO is the functional group of aldehyde group, and this is COH. This is carboxylic acid. So the correct answer to this question will be option number B. CO is the functional group of which is present in ketone. The heart in human beings is a part of system 4. We know that heart is then responsible for circulation of blood. So option number D will be correct. For excretion, kidney is responsible. Okay. For respiration, our lungs are responsible. Who does the work of opening and closing of pore in leaf? लीफ के अंदर उसके ओपनिंग और क्लोजिंग का कौन वर्क करता है? द निगार्ड सेल करते हैं. इट इज वेरी इजी. विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन और ऑर्गन्स? हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ग्रोथ को कौन स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल. उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे जिसके अंदर स्टेमन भी और पिस्टिल भी हो? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता, तो पॉलिनेशन के मेथड है. यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ या इधर फीमेल पार्ट होगा या मेल पार्ट होगा. बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें दोनों पार्ट हो. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा? बाइसेक्सुअल प्लांट आ जाएगा. ओके, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैन हैव सेक्स क्रोमोसोम्स. मैन के पास XY होते हैं, फीमेल के पास XX या XX होते हैं. मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड दिस इमेज इन मीटर विल बी. तो हमें बोला गया है कि आप ऐसे मानिए, सपोज दैट दिस इज आवर प्लेन मिरर. ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारा कौन है? एक प्लेन मिरर है. हमें पता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से कितने मीटर पे रखा हुआ है? 3 मीटर पे हमारा एक मैन खड़ा है मिरर से. यहाँ पे कोई मैन है जो मिरर से कितने मीटर पे? 3 मीटर पे. तो इसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर कितने मीटर पे बनेगी? 3 मीटर पे. हमसे पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड इमेज. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी हो चुकी है? 6 मीटर. तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? 6 मीटर आ जाएगा. इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें बोला गया इफ साइन आई इज इक्वल टू ए
एंड साइन आर बराबर बी देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल बी। तो हमें पता है अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, जो स्नेल्स लॉ होता है वो हमें बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर। तो हमें पता है साइन ए किसके बराबर? ए के। और साइन बी साइन आर किसके बराबर? बी के। तो ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हमें पता होना चाहिए जो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट है वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। इन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म, हमसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन वह एंगल होता है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो अपने पास से कितने एंगल पे बेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ये आई लिखा हुआ है तो इंसिडेंट एंगल हो गया। जो आल है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ई को हम क्या बोलते हैं? ई को हम बोलते हैं इमर्जेंट या एंगल ऑफ इमरजेंस या इमर्जेंट एंगल। हमसे पूछा गया एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये इंसिडेंट रे, देखना मैं एक बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रही है इंसिडेंट रे, ये कहां जा रही है? आगे से जा रही है। इमर्जेंट रे कौन सी है? ये। इसका मतलब है ये जो इमर्जेंट रे है, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं एक बार के लिए, तो इमर्जेंट रे कुछ देखो ये जा रही है, अगर आपको दिख रहा है तो। और ये जो मैंने अभी बनाया आपके लिए, ये कौन सी रे हमारी? इंसिडेंट आगे जा रही है। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे कुछ ऐसे थी, जो इमरजेंट रे वो कुछ ऐसे हो गई। मतलब इंसिडेंट रे इतने एंगल पे अपने पास से बेंड हो चुकी है। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्वेश्चन में मैं क्या दिखा रहा है? एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, अर्थ वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एज हमें पता है अर्थ वायर एक सेफ्टी पर्पस के तौर पे हमसे यूज किया जाता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? सेफ्टी मेजर के लिए। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल, हमें बोला गया राइट हैंड थंब रूल की बात हुई है हमसे। ठीक है। तो हमें क्या करना है? द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द, हमें पता है राइट हैंड थंब रूल के अंदर जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन दिखाता है? थंब हमें करंट की डायरेक्शन दिखाता है। तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारे पास, नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हमें बोला गया लेड नाइट्रेट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो उसे जो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस बनती है वो कौन सी होती है? देखो आपको पता होना चाहिए ये गैस होती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की। आपको पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपके पास एक बार बनेगा लेड ऑक्साइड, साथ में आपको मिलेगी ब्राउन कलर की फ्यूम जो NO2 की होती है, साथ में O2 बनेगा। तो हमसे पूछा गया नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस, कौन सी गैस होती है? NO2। ठीक है। सेकंड हमारे पास द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ HCl। डिसोसिएशन ऑफ HCl का मतलब होता है कि HCl को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया तो HCl एसिड जो है वो आयंस प्रोड्यूस करेगी। तो आयंस जब टूटेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे HCl में कौन कौन से आयन बनेंगे? HCl में दो आयन बनेंगे, एक बनेगा H+ और एक बनेगा Cl-। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है एनायन। तो एनायन कौन सा हो जाएगा हमारा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Cl-। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H8। अब देखो आपको दिख रहा है 3 का डबल करने पे 6 मिलेगा, उससे मैंने 2 जोड़ा तो 8 मिल गया। इसका मतलब जो C3H8 है वो हमारे पास एक एल्केन है। सॉरी, एक मिनट देखिएगा। मैं इस पे क्या करता हूँ, मैंने इसके ऊपर हाइड्रोजन को बैलेंस करा। मैंने यहाँ पे 3 यहाँ जाएंगे, 2 बीच वाले कार्बन पे, 3 यहाँ। तो टोटल 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करता हूँ तो देखिएगा, जहां से मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कौन कौन सा है, सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 10 हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। हमें पता है आर्टिफिशियल क्या किडनी होती है? एक ऐसी डिवाइस जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करती है। किस प्रोसेस को दूर करती है? डायलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डायलिसिस। डायलिसिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स। ये तो आपको पता होना चाहिए।
Synapse is the gap between two neurons. The ratio of height of image to the height of object. हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसका रेशियो होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट अपने पास ये डैश लेंस इज यूज्ड इन करेक्टिंग फार साइडनेस। फार साइडनेस को सही करने में हमारे पास कौन सा लेंस काम में आता है, तो हमें पता होना चाहिए। फार साइडनेस का मतलब हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए दिखाई दे रहे हैं लेकिन पास के दिखाई नहीं दे रहे। तो इस केस में हम जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। थैंक यू।